دوستو بہت ہی مزیدار ایپیسوڈ کہانی میں ایک زبردست موڑ آیا ہے۔ امید ہے آپ سب کو پسند آئے گا۔ چلتے ہیں آج کی مزیدار ایپیسوڈ کی طرف۔ میں نے چاروں طرف پوری آنکھیں کھول کر سمت کا اندازہ لگانے کی کوشش کرنے لگا۔ اتنے میں ایک جگہ میری نظر ٹھہر گئی۔ دور سے مجھے ہلکی سی روشنی نظر آئی، جیسے آگ جل رہی ہو۔ اس روشنی کو دیکھتے ہی میں سمجھ گیا کہ یہ سڑک ہے جہاں گاڑیاں چل رہی ہیں۔ اسی دوران اسی روشنی کی آگ کی سمت مجھے بھاگنا تھا۔ سمت کا تعین ہوتے ہی میں نے سر پر دوڑنا شروع کر دیا۔ جنگل میں بھاگنے کے طریقے کے بارے میں بھی جہانزیب خان مجھے بتا چکا تھا کہ زمین سے کتنا پاؤں اوپر اٹھا کر ہرن کی طرح چھلانگیں بھرتے ہوئے بھاگنا تھا، تاکہ اندھیرے میں بھاگتے ہوئے کسی جھاڑی یا پتھر سے ٹھوکر لگنے کا چانس نہ ہو۔ میں اسی انداز میں بڑی بڑی چھلانگیں بھرتے بھاگتا جا رہا تھا۔ میرے منہ پر کئی بار کانٹے بھری جھاڑیوں کی ٹہنیاں لگ رہی تھیں، سینے سے درختوں کی لٹکتی کمزور شاخیں ٹکرا رہی تھیں۔ اسی وقت میرے ذہن سے سریش بھی نکل گیا تھا کہ وہ زندہ ہے یا بیچارہ مر گیا ہے۔ میں کسی طرح ساتھیوں کے پاس پہنچنا چاہتا تھا۔ بھاگتے ہوئے مجھے ایک دم خیال آیا کہ جتنا میں بھاگ چکا ہوں، گاڑیاں اتنی دور تو نہیں تھی، کہیں میں غلط سمت تو نہیں نکل آیا، یا پھر ساتھی مجھے چھوڑ کر نکل گئے ہیں، کیونکہ جہانزیب خان نے اس بات کا باقاعدہ اعلان کیا تھا کہ مشن کامیاب ہونے کے بعد اگر ایمرجنسی صورتحال بن جائے تو ہر ساتھی نے اپنی محنت سے اپنی ذمہ داری سے واپس اپنی منزل پر پہنچنا ہے۔ مجھے تو ایک مخصوص سمت کا پتا تھا، وہ بھی بھوک اور تھکاوٹ میں بھول گیا تھا۔ میں لمحہ بھر کے لیے بے چین ہو کر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگا، مگر سوائے گہرے اندھیرے اور مکمل سناٹے کے مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جنگل خوفناک منظر پیش کر رہا تھا۔ جنگل کے گھنے ہونے کی وجہ سے چاند کی روشنی بھی مجھ تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ مجھ پر عجیب سی کیفیت چھا گئی تھی۔ پیچھے کی جانب جاتا تو آرمی سے دوبارہ ٹکراؤ ہو سکتا تھا۔ آگے کے راستے کا کچھ علم نہیں تھا۔ ہتھیار پیچھے چھوڑ آیا تھا، ہاتھ بندھے ہوئے تھے جنہیں دوڑتے وقت بھی کئی بار کھولنے کی کوشش کر چکا تھا۔ روشنی ہوتی تو نائلون کی باریک رسی کی گرا اس کا کوئی لاک وغیرہ دیکھ کر اسے کھولنے کی کوشش کر لیتا، مگر اندھیرے کی شدت سے کچھ دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا۔ لمحہ بھر میں حتمی فیصلہ کر کے پھر سے آگے کو دوڑنے لگا کہ آخر کہیں تو نکل جاؤں گا۔ مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ جنگل ختم کہاں ہوگا، جنگل کے باہر کی لوکیشن کیا ہوگی۔ آواز آنا بھی بند ہو چکی تھی۔ اگر آواز آ رہی تھی تو میرے پاؤں کے نیچے خشک پتوں کی چنٹھونی کی آوازیں آ رہی تھیں، پھر جنگلی جانوروں کی گرجدار خوفناک آوازیں، جو میرے رونگٹے کھڑے کرنے کے ساتھ ساتھ بھاگنے میں میری انرجی بھی بڑھا رہی تھی۔ بھاگنے کی وجہ سے پسینے سے میرا جسم شرابور ہونا شروع ہو گیا تھا۔ حالات جیسے بھی تھے، نامعلوم منزل کی طرف بھاگتا جا رہا تھا، پھر بھی اس بات کی تسلی تھی کہ میری ہمت اور حوصلے جوان تھے، خوف کی شدت ابھی تک نہیں گھل رہی تھی۔ جب بھی کسی جانور کی گرجدار آواز سنائی دیتی، میری سپیڈ میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ اس وقت مجھے بس فکر تھی تو اپنے ساتھیوں سے بچھڑنے کی فکر تھی۔ 1 گھنٹے کے لگ بھگ تسلسل سے بھاگتا جا رہا تھا، جنگل ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ احتیاط کے باوجود کئی بار گرتے گرتے بچا۔ آخر ایک جگہ جا کر احساس ہوا کہ یہاں چند منٹ رک کر اپنے ہوش و حواس قائم کر کے کسی آئیڈیا پر غور کروں کہ مجھے مزید آگے جانا چاہیے، یہاں سے سمت بدل لینی چاہیے۔ یہ خیال آتے ہی میں نے رک کر درختوں کے ساتھ کمر لگا کر گہرے سانس لیتے ہوئے اپنی کیفیت نارمل کرنی شروع کر دی۔ بھاگنے کی وجہ سے پیاس بھی محسوس ہو رہی تھی، مگر پیاس کی شدت اتنی نہیں تھی کہ میرے ارادے کمزور پڑ جاتے۔ چند لمحے سر کو درخت کے ساتھ ٹیک کر آنکھیں بند کر کے گہرے سانس لیتا رہا۔ جیسے ہی میری کیفیت کچھ سنبھلی تو اب میرے دماغ نے کام کیا کہ پاجامے کے اندر ران کے ساتھ لگے ہتھیار کو تو دیکھوں کہ وہ موجود ہے یا کمانڈو نے نکال لیا تھا۔ یہ خیال آتے ہی میں تھوڑا جھک کر بندھے ہاتھوں کو ران پر مارتے ہوئے چیک کرنے لگا۔ اگلے ہی لمحے میرا ہاتھ ہتھیار کے دستے سے ٹکرایا۔ دستے کو پکڑ کر میرے چہرے پر امید کی کرن پھوٹ پڑی۔ میں جلدی سے پاجامے کے اندر ہاتھ گھسا کر گھسیٹنے کی کوشش کرتے ہوئے کسی طرح ہتھیار نکالنے میں کامیاب ہو گیا، کیونکہ یہ مخصوص انداز میں ران کے ساتھ بندی بیلٹ میں لگایا گیا تھا۔ کاکا ہتھیار چھن جائے، گولیاں ختم ہونے کی صورت میں کام آ سکے، پھر دشمن سے گتھم گتھا ہونے کی صورت میں موقع ملتے ہی اسے نکال کر دشمن کی شارت پر حملہ کیا جائے۔ یہ نکال کر پہلے تو میں نے ہاتھوں کی مدد سے اس کی ڈوری پر پھیرنے کی کوشش کی، مگر ناکام رہا۔ پھر اسے دانتوں میں لے کر ڈوری کاٹنے کی کوشش کی، مگر اس میں بھی ناکامی ملی۔
आखिर मैंने नीचे पैरों के बिल बैठकर उसके दस्ते को दोनों पैरों के दरमियान दबाकर किसई की छुरी की तरह इस्तेमाल करते हुए दोनों बाजों को बीच में से गुजारकर डोरी को तेज धार पर फेरना शुरू कर दिया। बेशक डोरी बहुत मजबूत थी जो खास इसी काम के लिए इस्तेमाल होती थी, मगर उसकी तेज धार ने पिल झपकते डोरी को काट दिया। हाथ आजाद होते ही मैंने ऊपर वाले का शुक्र अदा किया कि इस मुसीबत से बरवक्त जान छूट गई। साथ ही खुद को कोसने भी लगा कि यह ख्याल अगर पहले आ जाता तो मैं वहां से कोई हथियार उठाने में कामयाब हो जाता। खैर, जो हुआ सो अच्छा हुआ। ये मुहावरा सोचकर दिल को तसल्ली दी कि अब कम अज कम मद मुकाबिल होकर हाथ में हथियार लेकर अपना दिफा तो कर सकता हूं। मजीद चंद लम्हे वहां ठहरने के बाद मैं आगे की जानिब चल पड़ा। चंद कदम चलने के बाद मैंने आहिस्ता आहिस्ता दौड़ना शुरू कर दिया। दौड़ते हुए दूसरा हथियार भी निकालकर दूसरे हाथ में पकड़ लिया। मेरे दोनों हाथों में हथियार थे जिससे मैं हर आने वाली शाख झाड़ी को काटते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। इस वजह से रास्ता साफ करते हुए भागने में भी आसानी हो रही थी। कुछ देर गुजरी थी कि मेरे कानों में हल्का सा गुड़गुड़ का शोर सुनाई दिया। शोर सुनकर मैं एक जगह रुककर आवाज को पहचानने की कोशिश करने लगा, क्योंकि आवाज बहुत हल्की आ रही थी। कुछ देर बाद जब गुड़गुड़ की आवाज तेज हुई तो मैं फौरन समझ गया कि यह हेलीकॉप्टर की आवाज है। हेलीकॉप्टर की आवाज को पहचानते ही मेरी छठी हिस्स ने खतरे की घंटी बजा दी कि हो ना हो ये आर्मी का हेलीकॉप्टर है। मौजूदा सूरत-ए-हाल को मद्देनजर रखते हुए मैं जितनी स्पीड से भाग सकता था भागने लगा। साथ ही मेरे कानों में हेलीकॉप्टर की आवाज जो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही थी मुझे तसल्ली दे रही थी कि मैं हेलीकॉप्टर से दूर होता जा रहा हूं। यही तसल्ली मेरे साथ भागने में हौसला अफजा साबित हो रही थी। कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर की आवाज आना बंद हो गई। आवाज सुनाई देना बंद होते ही मैंने शुक्र अदा किया और रुकने की बजाय आगे बढ़ता चला गया। किस्मत अभी तक मेरा साथ दे रही थी, वरना आर्मी से बच निकलने के बाद जिस तरह का घना जंगल था और जिस तरह खूंखार जानवरों की डरूनी आवाजें सुनाई दे रही थीं, ऐसे में किसी दरिंदे से भी मेरा पाला पड़ सकता था। मजीद 1 घंटा मुसाफत के बाद मुझे दूर से मध्यम सी रोशनी दिखाई दी। रोशनी के इस सूरजनुमा मंजर में उम्मीद की किरण देखकर रुककर रोशनियों की नौयत का जायजा लेने लगा। चंद लम्हों में समझ गया कि यह आबादी है और रोशनियां ट्यूबलाइट्स की है। आबादी कितनी बड़ी थी ये तो करीब जाकर ही मालूम होना था। मैं हथियार वापस बेल्ट में घसीटकर मखसूस अंदाज में पकड़कर दौड़ने की बजाय नॉर्मल अंदाज में मोहतात होकर आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे मैं आबादी के करीब होता जा रहा था रोशनियां तेज होती जा रही थीं। कुछ देर में जंगल के इख्तिताम पर पहुंचकर एक झाड़ी की आड़ में छपकर आबादी के साथ साथ इर्द-गिर्द का जायजा लेने लगा कि कहीं मिलिट्री की गाड़ियां अजवान तो नहीं फिर रहे। मगर अभी तक चारों तरफ बिल्कुल सुकूत तारी था। सामने आबादी के घरों के नक्शों के हिसाब से ये मिडिल क्लास लोगों की रहाइश मालूम होती थी, क्योंकि ट्यूबलाइट की रोशनी में जितने घर नजर पड़ते थे सब ही नॉर्मल से बने हुए थे। चंद कदमों पर कच्ची सड़क थी। सड़क को पार करके मुझे आबादी में दाखिल होना था। यहां भी मैं डबल माइंड हो गया था, क्योंकि जंगल में तो छुपने की जगह मिल सकती थी, मगर आबादी में दाखिल होने के बाद अगर आबादी के किसी पहरेदार या मिलिट्री से सामना हो जाता तो ऐसी सूरत-ए-हाल में छुपने की जगह भी नहीं मिलती थी, क्योंकि मेरे पास सिवाय हथियारों के कोई और हथियार नहीं था जिसे दूर से टारगेट कर सकता। दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर की आवाज से मुझे यकीन हो गया था कि मिलिट्री ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है और किसी वक्त भी हेलीकॉप्टर का रुख इस तरफ हो सकता था। अब फिर इस ऑपरेशन में 1 से ज्यादा हेलीकॉप्टर भी हो सकते थे, इसलिए जो फैसला करना था जल्द अज जल्द करना था। आखिर में कुछ सोचे समझे बगैर ही आबादी की तरफ बढ़ने लगा। सड़क क्रॉस करते वक्त दोनों तरफ तसल्ली करते हुए बड़े मोहतात अंदाज में सड़क पार करते ही सामने मुझे गिल्ली दिखाई दी। मैं तेज तेज कदम उठाते हुए गिल्ली में दाखिल हो गया। गिल्ली में दाखिल होते वक्त हथियार पाजामे के अंदर छुपाकर सर पर पगड़ी दुरुस्त करते हुए कपड़ों पर हाथ फेरते हुए कपड़ों को झाड़कर अपना हुलिया दुरुस्त करने लगा। काले रंग का करता पाजामा होने की वजह से मुझे इतना तो मालूम था कि कपड़ों पर अगर दाग लगे भी हों तो मिट्टी के ही होंगे। बाकी अभी तक कीचड़ वाली जगह से महफूज रहा था। कपड़ों पर लगी खुश्क मिट्टी तो मैंने मुमकिना हद तक झाड़ दी थी। गिल्ली काफी लंबी और चौड़ी कच्ची सड़क बनी हुई थी। रात का आखिरी पहर होने की वजह से गिल्ली में सन्नाटा था। हर तरफ सुकूत था, बस दौर से कुत्तों की भौंकने की आवाज वक़्ता-फ़ौक़्ता कानों को सुनाई दे रही थी।
मैं चलते हुए दोनों अतराफ के घरों को ऐसे देखता जा रहा था जैसे पहचान का घर तलाश कर रहा हूं। अब फिर किसी घर का दरवाजा खुला हो तो बन बुलाए मेहमान की तरह अंदर घुस जाऊं। थोड़ा आगे जाकर मकान खत्म होकर दुकानों के बंद शटर नजर आने शुरू हो गए। मैं तेज रफ्तार कदम उठाते हुए कुछ आगे गया तो दाएं जानिब पुतली सी गिल्ली मूर्ति दिखाई दी, जबकि सीधा रास्ता भी काफी पड़ा था। मैंने गिल्ली में झांक कर देखा तो ये गिल्ली भी हद निगाह तक जाती नजर आई। मैं सामने जाने की बजाय दाएं जानिब पुतली गिल्ली में घुस गया ताकि इस गिल्ली में खुद को महफूज कर सकूं। अभी चंद कदम चला था कि अचानक मेरे कानों में पहचानी हुई आवाज सुनाई दी। आवाज सुनते ही मैं आसमान की तरफ देखकर तेज तेज कदम उठाने लगा। आवाज की शिद्दत सुनकर समझ गया कि हेलीकॉप्टर आबादी से कुछ ही दूर है, यानी वो पूरा जंगल छान कर जंगल के आखिर तक पहुंचने वाले हैं। मैं तेज तेज चलते हुए घरों को देखता जा रहा था। तकरीबन हर घर की बैरूनी दीवार इतनी थी कि अगर जंप लेता तो दीवार के किनारे को पकड़कर ऊपर चढ़कर किसी भी घर में दाखिल हो सकता था, मगर अभी तक ना तो ये करने का हौसला हो रहा था और ना ही ऐसी इमरजेंसी बनी थी कि रिस्क लूं। एक तरफ गिल्ली इख्तिताम को थी, दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर का शोर शिद्दत इख्तियार करता जा रहा था। मैंने आवाज की समत देखते हुए हेलीकॉप्टर की लाइट्स देखने की कोशिश की, मगर सिवाय आवाज के कुछ दिखाई ना दिया। आखिरकार गिल्ली खत्म होने के बाद फिर से एक कच्ची सड़क आ गई। सड़क के दूसरी तरफ दूर दूर तक खाली मैदान था। अब मेरे पास दो रास्ते थे, आ तो खिले मैदान में निकलकर वहीं मार खाना, आ फिर वापस मुड़कर किसी घर में दाखिल होकर घर वालों से मदद की अपील करना। मुझे तो अभी तक ये भी मालूम नहीं था कि इस आबादी के लोग किस मजहब से ताल्लुक रखते हैं और किस तबीयत के मालिक हैं। इतने में मुझे आसमान पर सफेद रोशनी फैलती महसूस हुई। रोशनी की समत देखा तो पहली नजर में समझ गया कि हेलीकॉप्टर आबादी से कुछ दूर जंगल के ऊपर मंडला रहा है। रोशनी देखते ही मैं फुर्ती से वापस गिल्ली में घुसकर खड़ा हो गया और अपनी बेबसी पर परेशान हो गया, क्योंकि गिल्ली से बाहर निकलने की सूरत में भी मौत, गिल्ली में खड़े रहने पर भी मौत सर पर मंडला रही थी। छुपने के लिए न कोई आशियाना था और न कोई पनागा। गुर्बत ऐसी थी कि दौर से भी मुझे देखा जा सकता था, क्योंकि इस सुनसान गिल्ली में सिर्फ मैं ही वाहिद शख्स खड़ा था। हेलीकॉप्टर का शोर और आसमान पर सफेद रोशनी बढ़ती जा रही थी। यूं लग रहा था जैसे बस चंद लम्हों बाद आसमान से गोलियों की बौछार शुरू हो जाएगी। इस मुसीबत के बारे में दिल और दिमाग में कई तरह की ख्यालें चल रही थीं। इतने में सायरन की आवाज मेरे कानों में सुनाई दी, जैसे आर्मी की गाड़ियां इस तरफ आ रही हों। फिर एक सायरन के साथ 3-4 सायरन बजने लगे, जैसे इलाके को चारों तरफ से घेर लिया हो। ऐसी सूरत-ए-हाल बनते ही मैंने मौत को यकीनी महसूस करने लगा, क्योंकि सब शायद मुझे गिरफ्तार करने की बजाय गोली मार देना चाहते थे। मेरे दिमाग ने भी सोचना बंद कर दिया था। तो अचानक बेबसी के आलम में आसमान की तरफ मदद तलब नजरों से देखा और दिल से एक सादा सी आह निकली, ये नीले आसमान वाले, इस वक्त तेरे सिवा मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। आ तो मुझे हथियार दे दे ताकि मैं उनका मुकाबला कर सकूं, आ फिर मेरे लिए कोई मदद भेज दे। मैं बेबसी की मौत नहीं मरना चाहता। तो जानता है कि मैं गुनहगार हूं, खताकार हूं, मगर मेरा तवक्कल तुझ पर ही है और तू ही मुश्किल कुशा हाजत रवा है। मैं गुनहगार सही, मगर इस वक्त में उनको बचाने के लिए निकला था जो तेरी राह में कुफार से लड़ते हुए अपनी जान का नजराना पेश करते हैं। जैसे तूने मेरी इज्जत महफूज रखकर मुझे कामयाबी अता की, आज एक बार फिर मेरी गैबी मदद फरमा दे। जैसे तो अपनी राह में लड़ने वालों पर गैबी मदद भेजता है, वैसे ही आज कोई करिश्मा दिखा दे। मेरी कैफियत एकदम ऐसी कैसे हो गई मुझे मालूम नहीं। मेरी आंखों से कब आंसू जारी हुए मुझे मालूम नहीं। मैं कब आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ इसी समत वापस जाने लगा मुझे मालूम नहीं। गिल्ली इतनी तंग थी कि अगर दो बंदे एक साथ चलते तो सामने से आने वाले को रास्ता देने के लिए एक साथी को पीछे हटना पड़ता। इसलिए मैं खुद बखुद घरों के दरवाजों के करीब से गुजर रहा था। थोड़ा सा आगे आया था कि मेरे कानों में मानूसी आवाज पड़ी। इस आवाज में ऐसी रूहानी ताकत थी कि मुझे एकदम होश आया, जैसे तवील गुनूदगी के बाद होश में आया हूं। पहले तो मैंने इसे अपना वहम समझा, मगर गौर करने पर मेरे कदम वहीं रुक गए। मैं बाईं जानिब वाले घर से आती हुई आवाज को सुनने के लिए दरवाजे के बिल्कुल करीब हुआ तो आवाज कदरे वाज़े सुनाई दी। आवाज में इतना रूहानी सुकून था कि एक बार फिर मौजूदा सूरत-ए-हाल को भूलकर आंखें बंद करके इस आवाज के सिहर में जकड़ गया।
मगर कुछ लम्हों बाद हेलीकॉप्टर की गुड़गुड़ की शिद्दत और सफेद रोशनी ने मुझे चौंका दिया। जब ऊपर देखा तो हेलीकॉप्टर की सफेद रोशनी रात की सियाही चीर रही थी। रोशनी का रुख भी आबादी की तरफ था। साथ ही सायरन की आवाजें भी करीब तर होती सुनाई दे रही थीं। अब मुझे फौरी एक्शन लेना पड़ना था, वरना लाइट की जद में आने का मतलब हेलीकॉप्टर से आने वाली बौछार का सामना था। मैंने बगैर सोचे समझे घर की दीवार के साथ होकर हाथ ऊपर करके जंप लगाया, दीवार के किनारे को पकड़कर बाजुओं पर जोर लगाकर दीवार पर चढ़ गया। दीवार पर चढ़कर एक नजर घर के अंदर के माहौल पर डाली और दूसरे लम्हे घर में छलांग लगाने की बजाय दीवार के साथ लटक कर बड़े मोहतात अंदाज में नीचे उतर गया। मैंने चमड़े के खास जूते पहने रखे थे, जिनकी वजह से मेरे कदमों की आवाज तो दूर की बात, जरा सी आहट भी खुद के कानों को सुनाई नहीं दे रही थी। छोटा सा सहन, दो छोटे कमरे, कमरों के आगे बरामदा। बरामदे में सफेद सूट पहने सर को दोपट्टे से ढांपे बैठी खातून हर्षे से बेनियाज होकर मुकद्दस किताब पढ़ने में मसरूफ थी। इसकी आवाज में इतना सुकून था कि दिल कर रहा था कि वो पढ़ती रहे और मैं आंखें बंद करके बदमस्त होकर सुनता रहूं। रूह को तस्कीन देने वाली आवाज थी। इस घर का इंतखाब करने की वजह यही आवाज थी। मुझे सुकून के साथ ये खुशी भी थी कि मैं जिस घर में दाखिल हो रहा हूं वो किसी गैर मुस्लिम का नहीं बल्कि मुसलमान का है, जो शायद मेरी असलियत जानकर मुझे पनाह भी दे दे। मगर इस वक्त मेरा हुलिया सिखों वाला था, जिसकी वजह से घर के अफराद को यकीन दहानी दिलाने के लिए मुझे अपनी मजहबी अहमियत पर रोशनी डालकर उन्हें तसल्ली करवानी पड़ती। अभी तक घर में मुझे वो खातून ही नजर आई थी जो मेरी जानिब पीट करके अपने खालिक से लो लगाए बैठी थी, इससे बातें करने में मसरूफ थी। इतने में हेलीकॉप्टर का शोर बढ़ने के साथ साथ सफेद रोशनी में इजाफा शुरू हो गया। मैं घबरा कर दबे पांव चलता हुआ औरत से बचकर छुपने की जगह तलाश करने लगा। अचानक मेरे कानों में इसी औरत की आवाज पड़ी, बेटा, दाएं तरफ वाले कमरे में चले जाओ, वहां तुम महफूज रहोगे। जल्दी करो, ये ना हो कि मिलिट्री के हेलीकॉप्टर की सफेद रोशनी की जद में आ जाओ। इस औरत की आवाज में इतनी मिठास, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, इतनी शफकत थी कि मैं घबराने की बजाय, डर के बजाय इसकी आवाज के सहर में जकड़ा हुआ कमरे की तरफ चल पड़ा। घर में दाखिल होने से अब तक मैं इस औरत को ही देख रहा था। मुझे छुपने की जगह बताते हुए भी इसने पलट कर मेरी जानिब नहीं देखा था, बल्कि वो अभी तक इसी पोजीशन में पीठ करके बैठी थी। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि इस औरत ने एक लम्हे के लिए भी मोड़कर मुझे नहीं देखा, मेरे कदमों की आहट तक नहीं सुनी। फिर इसे मेरी मौजूदगी का एहसास कैसे हो गया? चलो ये मुमकिन हो सकता था, मगर इसे मेरी पोजीशन के बारे में कैसे मालूम पड़ा कि मैं मिलिट्री वालों से छप कर आ रहा हूं और वो मुझे ही तलाश कर रहे हैं? अगर इसे मेरी मौजूदगी का एहसास हो गया था तो मुझे चोर भी समझ सकती थी, क्योंकि रात के आखिरी पहर में घर में चोर ही दीवार फलांग कर घुसता है। इस औरत को यूं बैठने देकर मेरे कदम वहीं रुक गए थे। अगले लम्हे औरत की सेहर अंगेज आवाज फिर से मेरे कानों में पड़ी, बेटा, जल्दी करो, ये ना हो कि वो लोग तुम्हें देख लें। जल्दी से कमरे में चले जाओ, यहां मत ठहरो। दिल को छू लेने वाली, रूह को ताज़ा कर देने वाली सेहर अंगेज जादुई पुरकशिश आवाज ने मुझे ख्यालों से निकालकर मौजूदा सूरत हाल की नजाकत का एहसास दिलाया। मैं सर झटक कर तेजी से कमरे की तरफ बढ़ा। बरामदे से होते हुए जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो अंदर दाखिल होते ही मेरे नाक से ऐसी खुशबू टकराई जिसे सूंघते ही मुझ पर वजह तारी होने लगी। मेरा दिमाग गहराइयों में डूबने लगा। खुद को हुआ मैं उड़ते खुश्क तिनके से भी हल्का महसूस करने लगा। मेरे में दाखिल होते ही मेरे नथनों से जो खुशबू टकराई थी, ऐसी सेहर अंगेज खुशबू आज से पहले मेरे नथनों को नसीब नहीं हुई थी। इस खुशबू ने जैसे मुझे पूरी तरह अपने सेहर में जकड़ लिया था, जैसे मैं दुनिया जहां से बेगाना हो गया था। मेरे दिमाग से सोचने समझने की सलाहियत छीन ली गई थी, जिस्म से रूह तक किसी ने कब्जा कर लिया था। बस मुझे ये नजर आ रहा था कि मेरे कदम सामने लग बिस्तर की तरफ बढ़ रहे हैं। अपने होश व हवास से बेगाना दीवाने की तरह, मस्त हाथी की तरह चलता हुआ बिस्तर की तरफ बढ़ने लगा। बिस्तर के करीब पहुंचकर मेरा वजूद कमजोर कच्ची दीवार की तरह धड़ाम से बिस्तर पर जा गिरा। गिरते ही जैसे किसी नर्म बाजुओं ने मुझे अपनी आगोश में समेट लिया था। बिस्तर पर गिरते ही खुद से बेगाना होते हुए मैं किस पनाह में आ गया था। जाने कौन सी गैबी ताकत ने मेरा रुख इस तंगगिल्ली में मोड़ा था, यानी कुफार के चुंगल से जाने कौन सी मखलूक मेरी मदद के लिए पहुंच गई थी। बज़ाहिर देखने में आम सा बिस्तर था, मगर इस आम से बिस्तर में जाने वो कौन सा ऐसा तहखाना था
जिसमें मुझे छुपा दिया गया था। जब मैं काफी देर इसी कैफियत में खुद से बेगाना इस फूल से नर्म बिस्तर पर पड़ा रहा था, जब आंख खिली तो खुद को इसी कमरे में इसी बेड पर लेटे हुए पाया, मगर अब कमरे का माहौल, बिस्तर, दीवार वगैरह सब कुछ नॉर्मल था। मैं आंखों को बार बार चुपकाता, कभी अपने वजूद को देखता तो कभी बिस्तर पर हाथ फेर कर पहले जैसी नरमी को महसूस करने की कोशिश करता, कभी कमरे का जायजा लेते हुए खुद को यकीन दिलाने की कोशिश करता कि क्या वाकई ये वही कमरा है जिसमें दाखिल होते ही मुझ पर वज्द तारी हो गया था। मैं खुद से बेगाना हो गया था। कुछ देर में इसी कश्मकश में मुब्तला खुद को यकीन दिलाने की कोशिश में लगा रहा। जब आंखों की तस्दीक से दिल और दिमाग को तसल्ली हो गई कि मैं एक नॉर्मल कमरे की नॉर्मल बिस्तर पर मौजूद हूं, तो मैं हड़बड़ा कर उठकर बैठ गया। चेहरे पर दोनों हाथ फेरने के बाद मैंने रानों पर हाथ फेरते हुए हथियार चेक किया तो वो अपनी जगह मौजूद थे। चंद लम्हे बैठने के बाद मुझे पक्का यकीन हो गया कि मैंने कोई ख्वाब देखा था। अगले ही लम्हे जब मुझे याद आया कि मुझे और मेरे साथियों को तो आर्मी आवारा कुत्तों की तरह ढूंढ रही है। ये ख्यालात आते ही मैं बाहर की पोजीशन देखने के लिए जल्दी से बेड से उतरकर कमरे के दरवाजे की जानिब बढ़ने लगा। अभी मैंने 2 कदम ही उठाए थे कि दरवाजा खुला और पुरनूर चेहरे वाली बुजुर्ग खातून हाथ में खाने की ट्रे पकड़े कमरे में दाखिल हुई। उम्र से वो खातून इसी 80 साल के लगभग थी, मगर उसके चेहरे पर जो रौनक थी, वो जो चमक थी, जो कशिश थी, इसको बयान करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसके चेहरे को देखकर हसन से नजर हटाना तो दूर की बात, पलकों को झुकाना भी गुनाह लगने लगा। एक बार फिर से मैं जान मूरत बना इस पर नूर 14वें के चांद से भी ज्यादा रोशन चेहरे को देखे जा रहा था। वो बुजुर्ग खातून अंदर दाखिल होते वक्त मुझे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, उठो बेटा। उफ, क्या आवाज थी! आवाज में क्या तरन्नुम था, क्या ताजगी थी! आवाज को सुनते ही मेरी कैफियत में तब्दीली आना शुरू हो गई। मैं एक लम्हे में गहरी नींद से जाग गया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इस बुजुर्ग खातून को क्या नाम दूं, इस अजीम पुरकशिश सेहर अंगेज शख्सियत की मालिक को किस नाम पुकारूं। इसकी तज़ीम बजा लाने के लिए इसकी शान में कौन से अल्फाज कहूं जो इसकी शान के लायक हों। मैं तो सारी जिंदगी हुआ की बेटियों को वरगलाने के लिए उनकी तारीफों के गिन गाता रहा था, उन पर शेर, गजल, नज्म कहता रहा था, मगर इस अजीम शख्सियत की शान में कुछ कहने के लिए मेरे पास अल्फाज ही नहीं थे। दिल चाह रहा था कि अभी बढ़ूं और उसके आगे कदमों में सर रखकर उसका शुक्रिया अदा करूं, मगर रुसवाई के डर से ये करने का भी हौसला नहीं हो रहा था। बुजुर्ग खातून अपने अल्फाज कहकर चंद लम्हे खामोश खड़ी अपनी सेहर अंगेज नीले आसमान की तरह चमकती दिन के उजाले की तरह रोशन आंखों से मुझे देखे जा रही थी। जब मुसलसल मेरी जानिब से खामोशी देखी तो वो मेरी जानिब बढ़ने लगी। जैसे जैसे इसका कदम मेरी जानिब बढ़ रहा था, मेरे दिल की धड़कन तूफानी रफ्तार पकड़ने लगी थी। मुझे यूं लग रहा था कि अभी मेरा सीना फट जाएगा और मेरा दिल फट कर बाहर आ जाएगा। मेरे पूरे वजूद पर लर्जा तारी होने लग गया था। मेरी ये कैफियत डर की वजह से नहीं थी, मुझे इससे कोई खौफ भी नहीं था। वो तो आसमानी मखलूक लग रही थी, ऐसी सेहर अंगेज शख्सियत की मालिक इस दुनिया की मखलूक हो ही नहीं सकती थी। वो मेरे करीब से करीब होती जा रही थी और मेरी कैफियत ऐसी थी कि जैसे अभी रेत से बना हुआ घर की तरह इस तूफान की हल्की सी छौंक से बखर जाऊंगा, अभी बर्फ की तरह पिघल कर जमीन में समो जाऊंगा। वो मेरे करीब आकर खड़ी होकर मुस्कुरा कर मेरी गाल पर झुर्रियों से भरा हाथ रखकर पुरनम आवाज में बोली, क्या हुआ बेटा, क्या तुम्हें मुझसे खौफ महसूस हो रहा है? उफ, बज़ाहिर झुर्रियों से भरा कपकपाता ज़ईफ हाथ था, मगर उसकी ताजगी नरमी रेशम की तरह थी, रोई के बादल की तरह थी। इन सब चीजों से का वो एहसास था जो मैं बहुत अजीब महसूस कर रहा था। वो जैसे जैसे मेरे गाल को शफकत से सहला रही थी, मेरा कपकपाता जिस्म नॉर्मल होता जा रहा था। मेरे अंदर जान, जिस्म में ताकत लूट आई थी। मैं एकदम से खुद को तनोमंद, मजबूत, फौलादी जिस्म का मालिक समझने लग गया था। मेरे अंदर हिम्मत, जज्बा, ताकत सब कुछ लूट आया था। ये सब पहले की निस्बत कई गुना ज्यादा था। मैं इसकी आंखों में खो गया, इसकी मोहब्बत भरी नजरों से देखता जा रहा था और वो मेरी जानिब मोहब्बत भरी निगाहों से देखे जा रही थी। चंद लम्हों में मेरी कैफियत ऐसी हो गई थी कि मैं उसके पुरकशिश, हसन अंगेज, सेहर अंगेज चेहरे का सामना कर सकता था, इसे मुखातिब कर सकता था, इससे बात कर सकता था, इससे सवाल जवाब करने की हिम्मत मेरे अंदर पैदा हो गई थी। शायद वो मेरी कैफियत से आशना हो गई थी, इसलिए दोबारा इसके होंठ हिले और वहीं पर तरन्नुम आवाज मेरे कानों में पड़ी, बेटा खाना ठंडा हो रहा है, किस सोच में गुम हो।
मैंने बोलने की हिम्मत की तो मेरे होंठ हिले और आवाज निकली, पुरनूर चमकती चेहरे वाली शफीक बुजुर्ग खातून अब कौन है और मैं इस वक्त कहाँ हूँ? वो मुस्कुरा कर बोली, मैं कौन हूँ तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं। बस तुम्हारे लिए यही जानना जरूरी है कि तुम जिस मुसीबत में गिरफ्तार थे, नीले आसमान वाले ने तुम्हें इस मुसीबत से छुटकारा दिला दिया है। इससे ज्यादा कुछ जानने की कोशिश मत करना, बस इस पर शुक्र अदा करके ये खाना खाओ और जितनी जल्दी हो सकता है यहां से चले जाओ। अभी तुम पर बहुत जिम्मेदारियां हैं जिनको तुमने पूरा करना है। जान इसकी आवाज में कैसी नागहानी ताकत थी कि इसकी बात खत्म होते के बाद मुझ में हिम्मत नहीं हुई कि मजीद इससे सवाल जवाब कर सकूं। मैं खामोशी से सर झुकाकर बेसी की तरफ चला गया। वो खाना मेरे सामने रखकर वापस चली गई। खाने में भुना हुआ गोश्त था। गोश्त की खुशबू नथनों से टकराते ही पेट ने भूख की शिद्दत का एहसास दिलाना शुरू कर दिया। मैं भूखे शेर की तरह गोश्त को नोचते हुए खाने लगा। देखने में थोड़ा सा गोश्त था मगर खाने में वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। लज्जत, जायका ऐसा कि जिंदगी भर कभी नसीब नहीं हुआ था। पेट भर कर खाने के बाद पानी पिया तो पानी की मिठास ऐसी कि दुनिया में कोई मशरूब मद्दे मुकाबिल नहीं था। पानी पीने के बाद मेरे जिस्म में एक नई जिंदगी की लहर दौड़ पड़ी। जिस्म में फिर से ताकत का एहसास मुझे बेसी पर बैठे ही होता लगा। मैंने अपने जिस्म के तमाम मसामों को हरकत करते हुए महसूस किया। मुझे यूं लग रहा था जैसे मैं सीना छोड़ा करूंगा तो सीने पर लग बुलेट प्रूफ जैकेट पाश पाश हो जाएगी। बॉडी बिल्डर की तरह बाजुओं को करूंगा तो बाजू का किया चीथरों में तकसीम हो जाएंगे। बस अब इस फूल जैसी और फौलादी जिस्म की ताकत को आजमाने के लिए मुझे जल्द अज जल्द यहां से निकलना था, क्योंकि इस बुजुर्ग खातून की बाज़गश्त एक बार फिर से मुझे सुनाई दी कि खाना खाने के बाद यहां से चले जाओ, बहुत सी जिम्मेदारियां तुम्हारी मुंतजिर हैं। खाना खाने के बाद मैं बिस्तर से उठकर कमरे से बाहर निकला तो बाहर वही सारा माहौल था जो मैंने रात को घर में दाखिल होते वक्त देखा था, मगर वो बुजुर्ग खातून मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। कमरे के साइड पर एक और कमरा था जिसके दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। मैं चंद लम्हे वहां रुककर घर का जायजा लेने के बाद घर के दरवाजे की जानिब बढ़ा। दरवाजा खोलकर मैं बाहर गिल्ली में निकला तो गिल्ली का मंजर भी वही था जो गुज़िश्ता रात में देख चुका था। मैं कितनी देर इस घर में रहा मुझे मालूम नहीं, मगर मुझे यूं ही लग रहा था जैसे गुज़िश्ता रात सोकर उठा हूं। गिल्ली में इक्का दुक्का लोगों की आमद और रफ्त थी, मगर किसी ने भी मेरी जानिब तवज्जो नहीं दी। इस बात ने मुझे खासा हैरान किया है, क्योंकि मैं इस बस्ती में, इस गिल्ली में अजनबी के इन लोगों के लिबास में और मेरे लिबास में भी जमीन आसमान का फर्क था। इन लोगों के लिबास और उनके रंग बरंगे लिबास से लग रहा था कि ये बंजारों की बस्ती है, जबकि उनके बिल्कुल बरक्स में सिखों के लिबास में था। सर पर पगड़ी, हाथ में कड़ा, तन पर काले रंग का करता पजुमा, पाँव में चमड़े के खास किस्म के जूते। फिर भी वो लोग ऐसे मेरे करीब से गुजर रहे थे जैसे मेरा वजूद उनकी नजरों से ओझल हो। किसी ने भी मुझे आंख भर कर भी नहीं देखा। घर से निकलकर मैं गिल्ली में आ तो गया था, मगर मुझे अब समझ नहीं आ रही थी कि मैं किस जानिब रुख करूं। एक तरफ जंगल था, दूसरी जानिब खुला मैदान था। मैं अभी सोच ही रहा था कि मेरे कानों में गाड़ी के हॉर्न की आवाज पड़ी। आवाज सुनते ही मैंने दाएं जानिब देखा तो जिस बड़ी गिल्ली से मैं छोटी गिल्ली में दाखिल हुआ था वहां से एक बस गुजरती नजर आई। बस को देखते ही मैं बगैर सोचे समझे बस के पीछे दौड़ पड़ा। दौड़ते हुए मैंने अपनी रफ्तार पर गौर किया तो इस दफा मैं खुद चौंक पड़ा कि क्या मैं इतनी तेज रफ्तारी से दौड़ सकता हूं। मगर यह हकीकत थी जिसको मैं झुटला नहीं सकता था। मैं चंद लम्हों में तंग गिल्ली से निकलकर खिली गिल्ली में आ गया, जिसको देखकर मुझे अंदाजा हुआ कि जिसे मैं अब तक गिल्ली समझ रहा था ये इस बस्ती का मैन बाजार है। मैंने एक नजर लोकेशन पर डालकर बस की जानिब देखा जो कुछ दूर जाकर खड़ी होकर सवारियों को चढ़ा रही थी। इससे पहले कि बस निकले तब तक मेरे बस के पास पहुंचते ही मुझे जिस चीज का झटका लगा वो बस का कंडक्टर था, जिसने मुझे देखकर मुखातिब करते हुए पंजाबी जुबान में कहा, आओ सदर जी, कहाँ जाना है? क्योंकि मेरे पास से जितने भी लोग गुजरे थे किसी ने मुझे आंख भर कर नहीं देखा था। तो इस गिल्ली से निकलने तक मेरे साथ ऐसा हुआ था, अब फिर ये सब मेरा वहम था। मैं बस के दरवाजे पर चढ़ते हुए बोला, पहले ये बताओ कि बस कहाँ जा रही है? कंडक्टर ने एक ही सांस में 36 स्टॉपों के नाम सुना दिए, मगर 2 स्टॉप के नाम सुनकर मैंने लम्हा भर में एक स्टॉप पर उतरने का फैसला करते हुए बगैर सोचे समझे जल्दी से कहा, हाँ मुझे चंडीगढ़ जाना है।